আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সচ দ্য ৰিয়েলিটি আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয়? এই বিষয়টো বিজেপি বা কংগ্ৰেছ অথবা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিষয় নহয়। এই বিষয়টো হৈছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ। প্ৰয়োজন হলে পুনৰ ৰাজপথত নামিম এই বুলি সংসদত মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে অখিলেশ যাদৱে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰক। জনাব চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয় এই বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই বিষয়টো বিজেপি কংগ্ৰেছ বা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিষয় নহয়। এই বিষয়টো হৈছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ। প্ৰয়োজন হলে পুনৰ ৰাজপথত নামিম এই বুলি মন্তব্য কৰিছে। সংসদত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত সংসদত উত্তপ্ত হৈছে নীট প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিতৰ্কলৈ আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে বিৰোধীয়ে এতিয়া চৰকাৰ পক্ষক আৰু অধ্যক্ষৰ ওচৰত এই বিষয়টো বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত দেশৰ ভিন্ন কোণৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰী উপস্থিত হৈছে আৰু CJPৰ প্ৰতিবাদত এক প্ৰকাৰে সমৰ্থন জনাইছে আৰু পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি সংসদ যি পদযাত্ৰা আছিল সেই পদযাত্ৰাত আমি দেখিছিলোঁ কেনেধৰণে আচলতে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এক প্ৰকাৰে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈছিল। আৰু সেই বিষয়টো পুনৰবাৰ সংসদত উত্থাপন কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অখিলেশ যাদৱে প্ৰশ্ন কৰিছে চৰকাৰক প্ৰয়োজন হলে পুনৰ ৰাজপথত নামি এনেধৰণে সকীয়াই দিছে চৰকাৰক। সংসদত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয়? শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। প্ৰয়োজন হলে পুনৰ ৰাজপথত নামিম এনেদৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। লগতে কৈছে এই বিষয়টো বিজেপি কংগ্ৰেছ অথবা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিষয় নহয়। এই বিষয়টো হৈছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ, দেশৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বিষয়। গতিকে এই বিষয়টো কংগ্ৰেছ বা বিজেপি অথবা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিষয় নহয়। এই বিষয়টো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়। এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয়? শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰে সদন আৰু সদনত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰ পক্ষক আৰু এক প্ৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কিয়? এই পৰিস্থিতি যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আৰু শেহতীয়াকৈ কিষাণ যি কৃষকৰ সংগঠন পঞ্জাৱৰ কৃষকৰ সংগঠনসকলে এক প্ৰকাৰে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু দেশৰ ভিন্ন কোণৰ পৰা উপস্থিত হৈছে এই প্ৰতিবাদকাৰী। এক প্ৰকাৰে CJPৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাইছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সোনম ৱাংচুক অনশনক লৈ দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু দেশজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছিল। তাৰ মাজতে সংসদ যি পদযাত্ৰা সেই পদযাত্ৰাত কিন্তু হিংসাত্মক পৰিস্থিতিও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই বিষয়ক লৈ এতিয়া সংসদত চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে। এই সম্পূৰ্ণ দায় হৈছে সম্পূৰ্ণ দোষী কিন্তু চৰকাৰে ইমান দিনে কোনো ক্ষেত্ৰতে মাত মতা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। সংসদৰ সেই বিশেষ দৃশ্যাংশ আছে আমি আগবঢ়াইছোঁ। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष मैंने बोलने के लिए कहा 1 मिनट प्लीज। नहीं आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य और फिर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य और फिर अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य और फिर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य और फिर अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी। नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन